ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜੇ ਆਸਤਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਫਰੀਦਾ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਪਿੱਛਲ ਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ ਜੀਵੰਦੜੋ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ ਜੀਵੰਦੜੋ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਫਰੀਦਾ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ। ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਿਛਲ ਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗੇ ਜੀਵੰਦੜੋ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗੇ ਫਰੀਦਾ ਫਰੀਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ। ਥੋੜੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ। ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰੇਂਗੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਿਲ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ। ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਦੇਰ ਦਰਾਣੀ ਨੇ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਿਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਲ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਵੰਡਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਤਿਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਕੜ ਹੈ। ਆਕੜ वाला कहता मैं सीखना ही नहीं, आई डोंट वांट टू लर्न। मुझे मम्मी कुछ सीखना ही नहीं है, तुम लेक्चर क्यों दे रहे हो? दादी के पास बैठो वो लेक्चर देती है, पापा के पास बैठो वो लेक्चर देते हैं, हर टाइम लेक्चर। मुझे कुछ सुनना है ही नहीं है। आई नो एवरीथिंग। कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, सेल फोन कैसे चलाते हैं, टीवी कैसे चलाते हैं, कार कैसे चलाते हैं, मैचिंग कपड़े कैसे पहनते हैं, मेरे को सब कुछ आता है। आई डोंट वांट टू लर्न। सुनना है ही नहीं है। मेरी हैंकड़ है। मैं जिस मर्जी उम्र का होवां, जे मैं सुनना नहीं चाहता, ਉਹਨੂੰ ਟੀਨੇਜ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਟੀਨੇਜ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 60 70 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ मैं आकड़िया आया, मैं हंकार ही चाह, मैं लिखना चाहता ही नहीं, सीखना इंज करना चाहता ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ पता है। हंकार है। क्यों? अगे कहते ने जे जाना शौ नड्डड़ा। शौ नड्डड़ा का मतलब जे तेरे अंदर नम्रता दी गल नूं तू जे समझ लवें, ये अर्थ लिखे कुछ होर होए ने, मैं तुहाडे नाल अपने ते टुका के दी सांझ करा। जे जाना शौ नड्डड़ा, जे तैनूं ये नम्रता आ जाए ना,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਮਤੀ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣ ਕਰੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣੀ, ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰੀ, ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੱਡੜਾ, ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਕ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਕੜੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤਨ ਜੁਬਨ ਆਗਾ, ਤਨ ਜੁਬਨ ਆਗਾ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਤਣੀ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਟਿੱਬੇ ਦਿਉ ਮੀਆਂ, ਟਿੱਬੇ ਦਿਉ ਮੀਆਂ, ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਾਂਗੂ ਇੰਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਗਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਾਚੇ ਧਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੜੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜੋਬਨ ਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਗਾ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਧਣੀ ਸਿਉ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉ ਮੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਿਆ 107, 105 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਥੋੜੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ 108 ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਥੋੜੜੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਨੇ। You have to get it। ਗਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ? ਬਸ ਇਹ ਔਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਹੇ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਕੜ ਕੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ,
उस दिन तू टिब्बा बन गया, बस हुण बारिश पेगी तेरे भांडे च नहीं पै सकती। यू आर ऑन ओवर कॉन्फिडेंट, हूँ तू कुशल नहीं रह सकता। ये मेरा सिम्टम दस रहे ने। लड़ीवार पिछल रात ना जाग्यो, मेरी पिछली रात किवें, मेरी जिंदगी हुण तक दी बीती किस तरह है। पिछल रात दा मतलब घड़ी मुताबक लास्ट नाइट जेड़ी राती 12 बजे तो बाद काउंट करते ने हनेरे वेले, उस पिछल रात दी गल नहीं चल रही। मेरी जिंदगी रूपी पिछल रात दा मेरे सिम्टम्स दस रहे ने। खाली चले, मैं खाली हुण तक खाली टुरदा फिरदा पिया सी। ओ माई गॉड, आई यूज टू थिंक आई एम सिविल इंजीनियर। आई थॉट मेरी जात है वे, मैं ना अगे जात ला के सब जगह दसा सी भुपिंदर सिंह पकौड़ा। मैं सब जगह अपनी ना जात रखी हुई है, पकौड़ा एवरीवेयर। ऐसे तुसी कौन हो, पूछया तेरा ना की है, मैं कह रहा भुपिंदर सिंह पकौड़ा। वाह, पूछे तेरी जात तो पूछी ही नहीं, पर मैं आकड़। इस तरह मैं जात, अभिमान, पढ़ाइयाँ, डिग्रियाँ और अपना स्टेटस, अपना रुतबा लैके सब जगह फिरदा रहिंदा। और केड़ी कार ते बैठा, केड़े ब्रांड नाम दे कपड़े पाए ने, केड़ी कलोनी च रहिंदा, केड़ा कितने लखा करोड़ां दा मेरा मकान है। इस सब कुछ दे हंकार विच मैं फिर रहा। ਇਹਦਾ मतलब मैं खाली हाँ। ਹੁਣ तक मैं खाली चल रहा सा। खाली चले धनी सियों, उन्हां कोल मत दे अंदर रब्बी गुणा दा धन नहीं है। उन्हां दी खाली मत दा भांडा, खाली मत दा भांडा डक्के डोले खांदा है। खाली मत दा भांडा गल्लां बहुत करदा है। उन्होंने कहंदे ने, कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबू न डोले। मैं खाली हाँ ताई भां भां करदा हाँ। किस तरह इतनी कीमती मेहनत करके सानू बाणी समझाई, फिर असी बाणी छड्ड के कदी सूरज प्रकाश दीयां कहानियां सुननियां शुरू कर दिंदे हां, कदी किधर गया ते नींद आ रही है, सुत्ते हां। पिछल रात ना जाग्या है, तू नहीं जागदा, तू जाग्या होया नहीं है। ये साडे सिम्पटम उस लड़ी विच कहंदे ने, फरीदा तिन्ना मुख डरावने जिन्हां विसारियो नाओ। असी डरावने भी हाँ, असी एक दूसरे को डरा के रखते हैं। ऐसे नहीं करेगा तेरे साथ बोलना छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं करेगा तुमको घर से निकाल देंगे, ऐसे नहीं करेगा मैं तेनू बरादरी च नहीं बुलाना, ऐसे नहीं करेगा। इस तरह तरीके ना चारों पासे हंकार विच स्केयर क्रो वांगू, जिस तरह खेत विच डरना टंगिया होंदा है, इस तरह असी एक दूजे को डराते हैं। पति पत्नी नूं, पत्नी पति नूं, सस नूं, बच्चों नूं, असी सारिਆਂ ਨੂੰ डरा के रखते हैं। और इस मैं पूरी तरह सब नूं दबा के रखा है, कोई कुसकदा नहीं मेरे अगे, डरा के रखते हाँ। वो दुनिया का इंसान सब तो फक्कड़, वो दुनिया का इंसान सब तो गरीब, वो दुनिया का इंसान सब तो बदकिस्मत है जिहदे कोलों लोकी घर का कोई भी मैंबर भी डरदा है। वो सब तो दुखी इंसान है। क्यों? क्योंकि जेड़ा डरिया दूजिया नूं डरांदा है। पै काहू को देता न पै मानता, डरिया होया दूजिया नूं डरांदा है। असी तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारियो नाओ, जेड़े सच नूं इग्नोर करते हैं। इत्थे दुख कनेरिया अगे ठौर ना ठाओ। अगे ठौर ना ठाओ का मतलब होंदा है मरण तो बाद नहीं, अगे ठौर ना ठाओ का मतलब होंदा है मेरा अगला पल। अगे दे मीनिंग शरीरक मरण तो बाद दी कोई गल नहीं है बाणी दे अंदर। अगे ठौर ना ठाओ, जदों शब्द पढ़ोगे ना, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, तो पाछे का मतलब पिछला नहीं है, पाछे का मतलब पास्ट नहीं है। आगे सुख मेरे मीता, पाछे का मतलब था उस तो बाद, आफ्टरवर्ड्स, देन उसके बाद। आगे सुख मेरे मीता, फिर पता क्या होगा उसके बाद, पता क्या होगा उसके बाद आनंद होगा। पाछे आनंद प्रभ कीता, ये मतलब पाछे दे भी अर्थ पास्ट नहीं ने, आगे दे अर्थ मरण तो बाद नहीं ने, पूर्वले
ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਵੀ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੀਜਿਆ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਰਾ ਸੱਚਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਟਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਰਾ ਸੱਚਾ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦਾ। ਟਰੂਥ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਟੈ ਪਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆਂ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਲ ਪਲ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ सुख पाइए रे। मन की मत त्याग। मन की मत ही तेरा गर्भ है, मन की मत ही तेरा हंकार है, मन की मत ही तेनू सवाई रखती है। मन की मत दे कारण ही तू कुड़ियार है, मन की मत दे कारण ही तेनू मन मैले सब किछ मैला। तन धोता है, मन अच्छा ना हो। जिन्ने मर्जी तू कित्थे भी तीर्थां ते सरोवरां ते जिथे मर्जी जदों मर्जी जिन्नी वारी मर्जी नहा के आ जाओ, कुछ फायदा नहीं होगा। नावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर ही रहेगा तेरा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। किसी और बारे नहीं समझना है जी। बच्चे बड़ा रौला पाते ने, किस तरह करिए। फिर मावां कह, जदों असीं गल करते ना, सैमीनार वगैरह होंदा, मावां कहंदियां, टीचरां कहंदियां, बच्चे रौला पाते ने, तुसीं कहंदे हो प्यार नाल बोलो, गुस्सा ना उन्हां नूं करो। कदों तक? मैं क्या जदों तक मतलब भाख्या पाओ। अपार का की मतलब होंदा? अपार मतलब बेअंत, अनलिमिटेड। प्यार करो। अच्छा नहीं मनिया होर प्यार करो। अच्छा नहीं मनिया दो लाल नूं थोड़ा ना क्या होर प्यार करो। भाख्या पाओ, बाहर ही रखो। नो नीड, डंडा चुकण की लोड़ नहीं है। पुरानी स्टेटमेंट यूसलैस, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड, नो यूज़ नहीं। हाँ, डंडे नाल बच्चे नूं दुध पिला सकते हैं, डंडे नाल भूत कोलों डरा सकते हैं, डंडे नाल कहना मनवा सकते हैं, डंडे नाल पढ़ाई करा सकते हैं। पर डंडे की गल भी कीती ना, ख्याल अंदर भी, बच्चा सारी उम्र लई दूर हो गया। यह कुदरत का नियम है। टुट गया, वॉल ऑफ रिस्पेक्ट टूट गई, सत्कार की दीवार टूट गई। भावें पति पत्नी होन, भावें फ्रेंड्स होन, ते भावें माँ प्यो ते बच्चे होन, सत्कार की दीवार टुट्टी गई। कुदरत का खरा नियम है। सो पिछल रात ना जाग्यो दे बारे असी कल तक जितना कुछ डिस्कस किया, मैं पिछली रात मतलब अपनी पिछली सारी जिंदगी मैं जागया नहीं, मैं इंज ही चलता रहा, अवगुणा नाल चलता रहा।
क्यों? क्योंकि अवगुणा दे नाल मरदे ने। अवगुणा नूं की कहंदे आ? मन एक न चेतस, मैं विसारिया, मन एक न चेतस हर बिसरत तेरे गुण गलिया। भाजी तुहाडे हुण चंगे गुण ते गए, हुण तुसी की बनोगे? अवगुणा दे शाह बनोगे। हुण तुसी बैड हैबिट्स वाले बनोगे। हुण तुहाडे कोल चॉइस कोई नहीं है। अंदरों दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए, ना ही ता घर को बाप रिसाए। अंदरों गया, रिस रिस के गया, सारे गुण गए, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुण गल जाते हैं। कदों गलते ने? जो मैं गुणा का ध्यान नहीं रखना और सच सीखना नहीं चाहता, उन्होंने कहते ने कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो व्याज बढ़न तो जाए, ना हर भजियो ना खत फटियो, ना हर भजियो ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए, काल पहुँचियो, हाँ काल पहुँचियो। कदों? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ पल पल मरदा हाँ, क्योंकि मैं सच नूं इग्नोर करदा। सच नूं इग्नोर करन वास्ते सोना पैंदा है, सच नूं इग्नोर करन वास्ते नींदरावले नैन बनाने पैंदे ने, सच नूं इग्नोर करन वास्ते टालना पैंदा है। इस करके असीं कह रहे हैं पाठ कर लिया, गुरुद्वारे चले गए, चिलिया कट आए, संग्रांद मना आए, तीरथ ते ना आए, सब कुछ हो गया, टाला टोले करते रहे, गुरु की गल सुनी नहीं, संभल के तिल दी बुक पढ़ी नहीं, कुछ समझिया ही नहीं। ये बहुत वड्डियाई नहीं है जी, समझ नहीं आती है पढ़ते हैं। ये कोई बहुत बड़ी गल नहीं है, बड़ी कीमती गल नहीं है, समझना है। समझ के जीवन विच अपना बदलाहट लियानी है। जे नहीं है तो कल तक असी इत्थे पहुँचे सी, सोए रही प्रभ खबर ना जानी। और जिहड़े 4 पहर सी, उहदा मैनूं अज एक मैसेज आया कि तुसी 4 पहर बड़े छेती नाल बोल दिते, पर तुसी वो एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैनूं रीकैप करदिआं होइआं आज वो पहला 4 पहर तुहाडे नाल सांझ करने पैणगे, पर मैनूं ये पॉइंट तुहाडे नाल सांझ करना है कि सोए रही प्रभ खबर ना जानी, क्योंकि मैं नींदर विच हमेशा मेरे नैन निंद्रावले और उन्हां दे कारण मैं पल पल मरदा। जे तैं रब विसारियो तां रब ना विसरियो है। कदों? जदों मैं पिछल रात ना जागियो, मैं जींदे जी मरिया होया, हाँ मरिया होया जीवन बिता रहा, एज इफ आई एम मूविंग डेड बॉडी, टुरदा फिरदा लाश वांगू। विसरे मर जाऊँ, हाँ जी आखा जीवा, पर आखा जीवन तो मैं टालदा हाँ। सानू किसी ने कहता वो जी नाम जपना बड़ा औखा है, गुरु साहब पता ही कह रहे हैं, जिन्हों तुसी औखा कहते हो ना, आखण औखा साचा नाम, तुसी उन्होंने औखा कहते हो, आखण औखा साचा नाम। अच्छा नाम आखना औखा है? नहीं, मैं टालता हूँ। फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पात, मैं दुनिया की चालते चलता, इस करके मैं टालता हूँ। अच्छा तुम कहते हो औखा है, आखण औखा साचा नाम। लो जी मेरे को तो साचे नाम की लागे भूख है, तुम इसको मुश्किल बोलते हो, मेरे को तो भूख लगी है। इस तरीके नाल समझांगे ना बाणी
तो कोई औखा नहीं है, मेरे ते आएगा। तू टालना है, तू टालना है, ते टालन दे कारण पल पल मरदा है। सतगुर जाग रहा है, सतगुर दे बाँ फड़ लै, सतगुर दी मत ले लै, मन की मत त्याग दे। इक्को सतगुर जागता, होर जग मोया सुता मोह प्यास। इक्को सतगुर जागता। सतगुर जागता दे नाल मन नू मर्ज करना पेगा। मन नू सतगुर दे नाल मर्ज हो जाओ, की कहंदे ने? सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। मत सतगुर दी आ गई तो चली केड़ी गई? मन की मत चली गई, हैंकड़ हंकार चला गया। हैंकड़ हंकार मेरी नींदर का प्रतीक सी, उस तरह मैं मरदा सी। जे सतगुर दी मत आ जाए तो फिर मैं मरांगा ही नहीं। उन्होंने कहते ने शब्द मरो, फिर जीवो सदी, ता फिर मरण ना होई। एक बूंद गुर अमृत दीनो तो अटल अमर राम हुआ। ओ लो भाजी तुस ते कोविड को डर के डरे पे हो, पल पल जेड़ा मरदे पे हो। इहदी गल कदों होएगी? साध संगत जी, कोविड तो डर ही तन करके डैथ दा इस करके लगता है क्योंकि पल पल जेड़ी मर रहे हैं उहदे पासे अख नहीं जा रही। जे उहदे पासे चली जाए तो 100 वरियां दी पिड़ जेड़ी बन के बैठे हाँ, वो वाली पूरी गेम समझ आ जाएगी कि मैनू कोई कॉन्फिडेंस, कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं योगा करन तो बाद, झूरी छुआरे बादाम खाण तो बाद, एक्सरसाइज करन तो बाद, एवरीथिंग करन तो बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं 100 साल जीआंगा। लेकिन असी सारिਆਂ ने मन अंदर ख्याल बनाया है, डरी जा रहे हैं ना, शरीरक, और पल पल मर रहे हैं। बहुत प्यारे ढंग दे नाल, बड़े खूबसूरत ढंग दे नाल, बड़ा कोमलता नाल गुरु साहब दस रहे ने, तेरे अंग पनप नहीं रहे ने, तेरा अंग तू सुत्ता होया है। पहला सौंदा सी ते अंग पनपदे सन, वड्डे होंदे सन, तू पलपदा सी, लेकिन हुण नहीं हो रहे ने। हुण बल्कि हुण की हो रहा है? हुण मुसीबत पैंदी जा रही है। हुण अखां खराब हो रही हैं, कन खराब हो रहे ने। की खराबी आ रही है? अखी सूतक, कन्नी सूतक, जेबा सूतक, सारे अपवित्र होई जा रहे ने, सारे खराब होई जा रहे ने। दैट्स वाई यू लाइक निंदा, यू लव निंदा। किसी बारे कोई चंगी गल करे ना, असी शक करते हैं, वो जरूरी नहीं होएगा बारों बारों करता होएगा। कोई किसी बारे चंगी गल करे, वी डोंट लाइक, वी डोंट ट्रस्ट, वी डोंट बिलीव। पर कोई किसी बारे मंदी गल करे, एकदम चंगी लगती है क्योंकि मेरे कन्ना नू सूतक पिया है, कन्नी सूतक कन्न पे लाइत बारी खाए, बहुत चंगी लगती है। क्योंकि बाकी सारे नू ते असीं अपने वांगू समझते हैं। जिहड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले प्रोफैसर की गल मैं कीती सी कि वो इंग्लिश का प्रोफैसर सी, इंग्लिश स्टूडेंट्स नू, MA स्टूडेंट्स नू पढ़ाने वाला, आप PhD इंग्लिश प्रोफैसर, ट्रेन इच गया तो कुछ डब्बियां दे पिछे उत्थे जिथों खाना मिलता है उत्थे गया, तो उत्थे जाके खाने वास्ते कहंदा मैनू दिखाओ, बैरन लिया के मैनू दिखाया, इन्हें मैनू नू चुक्या। वो अंदरों सोचता है मेरा चश्मा तो मेरी सीट ते ही रह गया, पढ़ नहीं पा रहा। तो कहंदा बैरा तुम पढ़ के बताओ आज क्या बनना है। तो बैरा पता ही कहंदा है, साहब आपकी तरह मैं भी नहीं पढ़ा आया। बहरा सोच रहा मैं अनपढ़ है, भी अनपढ़ ही होना। इंज असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ जजमेंट देखते हाँ भी मैं डुअलिटी च रहिंदा, मैं हिपोक्रेसी करदा, मैं झूठ बोलदा, मैं तो सच्चा सुच्चा है नहीं, कोई होर हो नहीं सकता। इस करके किसी दे बारे चंगी गल सानू माफक नहीं है। पर मंदी गल कोई करे एकदम वी बिलीव, वी लाइक इट, क्योंकि कन्ना सूतक पै चुका होया है। रोज़ पढ़ी जाना निंदा भली किसी की नहीं, रोज सुखमनी साहब ही करी जाना, करन ना सुने काहूँ की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। नहीं, अब बाकियों के मंदों की बात सुनाओ। चलो सुखमनी साहब हो गया, चलो हाँ की बनाया, अच्छा फिर फलाने दा, अच्छा फिर फलाने दा, फिर शुरू होंदा ना पूरा पोथे खोलने शुरू करते हैं ना असी सारे महल्ले दे, सारे बरादरी दे, सारे लोगों दे। फिर करन ना सुने कहो कि निंदा भुल गया। यदा मतलब असी सुन के समझना चाहते ही नहीं हाँ।
जीव अंदड़ो मोयो हाँ मछले होया मम्मी अभी मुझे नींद आ रही है पर आ नहीं रही है, मैं उठना चाहता नहीं हूँ, है ना। इंज ही होंदा है ना, मछले होए। सो सबाह टॉपिक इस करके मैनू अज विचारना पै रहा क्योंकि मेरे वो सज्जणा ने मैनू कहा कि तुसी ये वाला श्लोक साडे नाल साझ करो बई तुसी चार पहरे किस तरह विचारे। सो चार पहरे विचारन तो पहला असी अपना दोबारा सारा रीकैप कर लिया। मेरे नैन निंद्रावले ने जिन्हां दे कारण मेरे उत्ते मंदे ख्यालों का अटैक हुंदा है। टाला टोला दिन गया व्याज बढ़न तो जाए होर मंदे ख्याल वधदे जाणगे। जे तू अपने मंदे ख्यालों मंदे सुभाਅ नूं ठीक ना कीता टालदा रहा तेरे होर वधणगे, व्याज वांगू अवगुण वधणगे। डे बाय डे हालत होर खराब होएगी। उन्हें सारा नूं पता सी और जी तुम्हारा जब ना ऑक्सीजन लेवल 95 से 90 आए तब तक चल सकता, पर 88 आए 80 आए ना भाग जाना हॉस्पिटल, जल्दी चले जाना। फिर नहीं तो फिर क्या होगा, फिर और घटती जाएगी, फिर और घटती जाएगी, मर जाएंगे। इसका मतलब वधदी है ना गेम। कोविड बारे तो पता है पर ये बारे नहीं पता कि जदों मैं सतगुरु रूपी पवन रूपी गुरु की मत नूं इग्नोर करदा, उस ऑक्सीजन नूं इग्नोर करदा तो मेरे अंदर कोविड अवगुणी कुड़ियार ख्यालों का वधदा जाता है, व्याज वधदा जाता है, व्याज वधदा जाता है। मतलब मेरे अवगुण वधदे जाते हैं। पहला मैं बचपन ही निक्की जी गाल सीखी सी, वो मैं फिक्सअप नहीं की। मम्मी ने मना किया नहीं गाल नहीं कड्डीदा, फिर मैं पापे दे सामने कढ़ ली, फिर पापे ने भी मना किया नहीं कड्डीदा, फिर मैं गली जाके 2 सिखाया 4 सिखाया, फिर फिल्मां तो भी देख लिया, लोगों भी देख लिया, फिर मैनू आस्ता आस्ता होर गल्लां आ गई क्योंकि मैं अपनी जुबान ते गाल कड्डण नूं रोकिया ही नहीं। हुण लोग एक सेंटेंस बोलते हैं 6 विचकार गालां कढ़दे ने, पता ही नहीं होता। घर बैठे गुरुद्वारे बैठे माँ भैन की गाल विचकार कढ़दे जाते हैं क्योंकि आदत पै गई है, टाला टोला। सो वाइसिस का अटैक होंदा है। वाइसिस नूं जम कहते हैं। सत्संग जी इस ਜਿਹੜੇ छोटे मैं टिप्स तुहाडे नाल सांझ कर रहा, ये तुसी बाणी पढ़न वेले याद रखने। मरण तो बाद जम नहीं होंदे ने, हुणे होंदे ने। श्री राम नामा उचरमना वरना आगे जमदल बिखम करना। तैनू हर वेले यू आर वनरेबल, तेरे उत्ते जमा दा अटैक होंदा है। कर्म धर्म पाखंड जो दिशा 3 जम लूट है। मरण तो बाद नहीं, मरने के बाद वाले जम की फिलॉसफी गुरमत नहीं बताती है। गुरमत जींदे जी जम दे बारे समझाती है। तेरे नेगेटिव एटीट्यूड, तेरे मंदे ख्याल, तेरे वाइसिस, तेरे जम रूपी मन की मत दे इमोरलिटी वाले ख्याल, अनएथिकल सोच वाले ख्याल। करते ने। असी एक बारी पढ़िया सी, श्रम धर्म दोए छप खलोए, श्रम धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान बिला लो। छप खलोए कूड़ फिरै प्रधान। जे तू श्रम नहीं किया और धर्म नू फॉलो नहीं किया
दोनों फेड हो गए, छप गए। तू इन्होंने इग्नोर किया ना, फिक्के पै गए। हरी सब्जी लैके आओ ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद पत्ते पीले पैने शुरू हो जाते। श्रम धर्म, धर्म उत्ते तू मेहनत की नहीं, श्रम धर्म दोए छप खलोए। हुण की होएगा? प्रधानता, तेरी अगवाई, तेरी अक्ल नू पकड़ के टोरन वाला कौन? कूड़। कूड़ जम नू कहंदे ने, ओदी प्रधानता चलेगी। श्रम धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिर प्रधान। पाप की जंज, वो पाप की जंज ले आते ने, पूरी टोली आ जाती है, पूरा लश्कर आ जाता है मंदे ख्यालों का, अटैक करता है साढ़े। पाप की जंज लै काबल उताया, जोर ही मंगे दान वाला। सारी जोर जबरदस्ती साढ़े को पता की मंगते हैं? चंगे चंगे गुण दे दियो, चंगे गुणों का खजाना दे दियो। जिस तरह कुड़ी नूं दाज वेले डोली टुरन तो पहला मुंडे वाले कहते ना, कैश पूरा नहीं दिया, 2 सोना नहीं दिया, 2 प्रॉपर्टी कागज नहीं दिए। कीमती चीज़ां मंगते हैं ना, गले सड़े कारपेट तो नहीं मंगते ना, वो जूठियाँ छड्डियां हुई सब्जियां तो नहीं ना मंगते, भैड़ियाँ जूठियाँ प्लेटां तो नहीं ना मंगते। चोरी की मंगते ने? वट वैल्यूएबल यू हैव। साढ़े कोल वैल्यूएबल है साचा धन, चंगे गुण। चंगे गुण हो रब्बी गुण होंदे ने। कहदा उरे लाओ कौन? जम। मंदे ख्याल मेरे को चंगे गुण खो लैंदे ने जदों मैं धर्म दे उत्ते श्रम नहीं करदा। हाँ जदों नहीं कर, हाँ मेरे ते वाइसिस दा अटैक है, मैं मरिया आया, मेरी पल पल मौत होती है। मेरे मन दी मौत दे कारण मेरी सुरत मत बुद्ध मर गई है। मेरा हमेशा नैगेटिव ख्याल आते हैं, हमेशा ध्यान नैगेटिव वाल जाता है। सीधी गल भी मैनू पसंद नहीं है, उन्होंने भी मैं पुट्ठी समझदा। फिर यही होंदा ना, ये गल ही की करनी है, हर गल पुट्ठी समझदा है। इनू समझाने की कोशिश करिए, समझदा ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, जस्टिफिकेशन ही नहीं सुनता, दूजे नू चांस ही नहीं देता। फिर की गल करिए ऐसे बंदे नाल, फिर की गल करिए? फिर असी कहते जिथे बोलन आ रही है तिथे भली चुप, ओ जी रहन दो, फिर की करिए? इंज इंज पंक्ति भी बोल लेंदे आ, भावें वो टुकदी नहीं, उत्थे नहीं टुकदी, इंज कह कवा के भी की करिए, तेरा कौन मत्था लाए, सुनता तो है ही नहीं है। सुरत मत बुद्ध मर गई, ऑर्गन सारे सुत्ते हुए ने। सो पिछल रात ना जागियो दे सारे सिम्पटम साढ़े सामने आए और असी टाल टूल के मर गए। साढ़े गुण गल रहे ने। मन की मत त्यागनी है, मन की मत त्यागांगे तां सुखी होवांगे, वरना असी राजा दुखी। हाँ मेरे सारे अंगों नूं अग लगी हुई है। आई एम नॉट ट्यून्ड पर्सन, मेरी पर्सनैलिटी ग्रेट नहीं है। देखने में मैं सुंदर लग रहा हूँ, मेरे नैन नक्श सोहने ने, पर अत सुंदर कुलीन चित्र मुख ज्ञानी तनवंत, बट मैं हाँ मरिया होया। मृतक कहिए नानका, ये प्रीत नहीं भगवान। आई एम लाइक डेड बॉडी। ए विचार रहे हैं असी ते अपने अवगुणा वाले मंदे ख्यालां, मंदे नैगेटिव एटीट्यूड वाले जीवन नू जीवन समझ रहे हैं। और गुरु साहब कह रहे हैं मत कोई जाने जग जीवदा, दूजे पाए मुयास। अजी तुम तो जी ही नहीं रहे हो, तुम तो मुए हुए हो। जिन्हें सतगुर पुरख ना सेवो शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जूना आखियां पशु ढोर गवार हो। तुसी बंदे है ही नहीं हो, तुसी जी नहीं रहे हो। इनू जीवन ना समझना, यह जीवन नहीं है। सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर ना जीवे कोई। अजी तुम जी नहीं रहे हो, कैसे तुम अपने आप को समझते हो हम जी रहे हैं? वी आर अलाइव। नो, तुमको कोविड वाले डॉक्टर ने बोल दिया यस यू आर अलाइव, क्योंकि तुम्हारी 96 चल रही है और तुमने मास्क बांधा हुआ था, तुमको कोई कोविड नहीं हुआ है। हाँ टेम्परेचर भी ठीक है, तुमको भुलेखा तुम जी रहे हो। नहीं, जी नहीं रहे हो, पल पल करके रोज़ मर रहे हो, मन की मत वालों मर रहे हो। फरीद जी नू पुछिए, फरीद जी कह रहे हैं मैनू मेरे अंगां दी लगी हुई अग बारे समझ आ गई है। मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग
ਸਬਾਇਆ ਜਗ। ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। मैं जाने दुख मुझको नहीं, नहीं तेरे कोई कल्ले को नहीं है, औरों को भी दुखी है। तो कोविड वाले भी इंज कह देना सी, अरे सबको कोविड हुआ हमें भी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। कोविड वाले तो डर डर के बच रहे सी, ता भी कहना सी दुख सबको है, हमको भी है, कोई बात नहीं। ता तो नहीं डर रहे। ब्लड प्रेशर हो गया, ओए लोगों को भी होता है, चलो मैं लूण भी ज़्यादा खावांगा तो सारी गलत चीज़ें खावांगा। शुगर है, अच्छा जी लोगों को बड़िया होती है, मैं भी मिठा ज़्यादा खा रहा, मनु नहीं परवाह। इंज कर दो नहीं। फरीद जी कुछ होर कह रहे हैं, कहते ने मैं जानिया, मैं जान लिया, आई फाउंड इट, आई गॉट इट, आई अंडरस्टैंड, मनु समझ पै गई। मेरे अंगां विच सूतक पिया होया है, इन्हां अखां दे नाल मैं वितकरे नाल तकदा, मनु साफ नज़र नहीं आता है। मैं तेर मेर करदा, अपना पराया करदा, अमीर गरीब करदा, गोरा काला कहंदा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दा वितकरा करदा वां। मेरी अखां तो मन ठीक नज़र नहीं आता, मेरे कन्नां तो मनु निंदा सुनन दी आदत पई है, चंगी गण मैं सुनना नहीं चाहता, इस जबान के नाल मैं किसी नू भी एप्रीशिएट करना नहीं चाहता, लोगों के अवगुण लभ के डेप्रीशिएट जरूर, क्रिटिसाइज जरूर करना चाहता, निंदक मैं जरूर बनना चाहता। मेरे अंगां नू अग लगी हुई है, इसी नू तृष्णा दी अग कहते हैं, और यही मेरा लोभ है, ये नाल ही मैं जीना चाहता। मन समझ नहीं आ रही है, जीवन नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितने बच्चे कॉरपोरेट सेक्टर जाना चाहते हैं, जितने बच्चे कॉलेज तो पढ़ के निकलते हैं, सारे बढ़िया अट्रैक्टिव बुक्स पढ़ते हैं, अमरीका दियाँ टॉप क्लास राइटर्स दियाँ, ब्रिटिश राइटर्स दियाँ, इंग्लिश वर्ड दियाँ 7 टिप्स टू मेक योर पर्सनैलिटी, 13 टिप्स टू मेक योर पर्सनैलिटी, हाउ टू बी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इस तरीके से ना वो पढ़ते रहते हैं। पर सानू ये नहीं पता लग रहा मेरी पर्सनैलिटी दरअसल की बनती जा रही है, मेरा जीवन की बनता जा रहा है। फरीद जी कहते मन समझ आ गई, मेरे अंगां नू सब नू अग लगी हुई है, मैं जान लिया दुख एदे कारण मैं दुखी हाँ। दुख सबाया जग, जग का मतलब होंदा मेरा सोचनी दा जग, मेरे मन दा जग, मेरे अंदर दी सोचनी दे कारण मैनू अग लगी हुई है। दुख सबाया जग, उच्चा चढ़ के देखिया, उच्चा चढ़ के देखिया अपने शरीर दे सुखां तो, इन्हां अंगां दे स्वादां तो, इन्हां तो उपर उठ के एलीवेट हो के अपने तो अलग हट के देखिया, उच्चे चढ़ के देखिया, उच्चे दी मत लैके ओदी ऐनक नाल देखिया, घर घर एहा अग मेरे एक एक रोम रोम ऑर्गन इंद्र ज्ञानेंद्र च अग लगी हुई है। फरीद जी कहते ने मैं जान लिया, जदों ये पता लग जाए ना मेरे अंगां नू अग लगी हुई है, तां फिर पता की होएगा, अग तो बचना दा ख्याल आएगा। जे यही नहीं ना पता कि मेरे अंगां नू अग लगी हुई है, तां अग तो बचन दा ख्याल नहीं आएगा। जिसनू अग तो बचन दा ख्याल आएगा वो मन की मत, जम की मत, तृष्णा वाली मत, लोभ वाली मत, ये वाले मंदे ख्यालों वाली मत नू त्यागेगा, छड्डेगा, तां सुखी होएगा, वरना वो दुखी दुखी रहेगा। मैं एक गल सुनी सी, तुसी सब ने भी सुनी होनी, एक कां जा रहा सी, उहदे पिछे 8-10 इल्लां आ गईयां। इल्लां ज़्यादा लंबा फ्लाई कर सकती है, ज़्यादा उच्चा उड़ सकती ने, कां इन्ना लंबा नहीं फ्लाई कर सकता। कां घबरा गया, कां पुछदा रब नूं
भी मैं की करा। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬੋਟੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਇੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨਾ मन की मत दी, अपने अवगुणा दी, अपनी लोभ रत दी, अपने सारे नैगेटिव्स दी, जिन्हां दे नाल अग लगी हुई है उहदे कारण सुखी नहीं हाँ, वो छोड़ दईए सुखी हो जावांगे, बिल्कुल सुखी हो जावांगे, निरभार हो जावांगे। सिंपल सिंपल सौखे सौखे ढंग दे नाल मैं तुहाडे नाल सांझ करदा जा रहा। अग तो जे बचना है तो मन की मत त्यागनी पवेगी। मन की मत दे कारण ही सारी चारों पासे अग लगी है। मन की मत दे कारण मन मर गया, मत मर गई, सुरत मर गई। ताकि वो जदों मत मर जाती है तो की कहते ने सुमत नहीं है, फिर की है कुमत है। जदों कुमत होवे तो बुद्धि नहीं है, सुबुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है मेरे को। राइट। ए मन दे मरण दे कारण सुरत मत बुद्ध मर गई। मन की मत छड्डण लई ना निज कर दी, अंदर वसदे रब जी दी, अंदर वसदे सतगुर दी, अंदर वसदे सबे कट राम बोले दी गल सुनन दा चाह पैदा होएगा। अंदर दी गल 2 अक्तूबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਗੋਡਸ ਵੌਇਸ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਸੋਇਲਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਨਿਜ ਘਰ महल पावो सुख सहजे। फिर फायदा क्या होगा? तू पल पल नहीं मरेगा। निज कर महल प्राप्त कर ले, तेरे अंदर है। असी प्रोग्राम में रखा लिविंग ट्रेजर, जीवन जायज का खजाना तेरे अंदर खजाना है। कार ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया। अंदर है खजाना पर मैं बाहर भटक रहा। कल कथूरी आया सी, कस्तूरी आया सी, मेरे अंदर है खजाना, मैं बाहर भटक रहा, मैं बाहर लभ रहा, मैनू समझ नहीं आ रही है। मन की मत छड़ दे, निज घर दी मत ले लै। निज घर तेरे अंदर है, निज घर दे अंदर रब जी वसदे ने। मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, हर जी सब किसी दे अंदर ने। हर जी तेरे नाल है। गुरमती, गुरमती मतलब हर जी जो कहते हैं वो गुर सिखाते हैं, टेक्निक जीवन जा सिखाते हैं। रंग माण सौखा सुखी हो जाएगा। जो मन रंग माण लैंदा है, मन रंगावला बनता है। इस तो अगला श्लोक आएगा, मन रंगावला किवें बनिया। असी इस श्लोक को ही विचारना है। पहला इस तो अगले श्लोक चलांगे। मैनू नहीं पता तुसी सारे अगले हफ्ते कित्थे प्रोग्राम है, उत्थे पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। साडा टॉपिक चल रहा है नैन नींदरावले ने, मैं मरिया हाँ, पिछल रात ना जागो, मेरी रात संभाली है, तो समझे भी मेरी रात किवें बनी है। टॉपिक चल रहा है। असी कोई इधर उधर की कहानियाँ नहीं पा रहे हैं, कोई गल्लां नहीं कर रहे हैं। असी कोई 500 साल पुराना इतिहास नहीं तुहानूं सुना रहे हैं। और असी ये नहीं कह रहे साढ़े पीछे लगो, तुसी घर जाके बाणी पढ़नी है। फरीद जी का श्लोक 107 नंबर असी विचार गा रहे हैं बार बार कल तो, बहुत आस्ता आस्ता। टाइम मेरा होने वाला है। कल मैं समा वाधू लै गया सी, मैं खीमा दा जा चुका। मैनू कोई काल नहीं है कि मैं मुकाना है। अगले हफ्ते तुसी आना है। असी समझना है साड़ी यात्रा की असी यात्रा की बना रहे हैं। नैन नींदरावले तो जागदे नैन बनाने ने। ये हुण तुसी घर जाके पढ़ लेना। श्लोक नंबर 107 असी शुरू किया है। पिछले 2 श्लोकों का असी सिम्टम लै लेने। 113 श्लोक तक आएगा। दाती साहिब संधियां क्या चलना है तिस नाल, एक जागंदे ना लहन, एक ना सुतियां। अच्छा सारे लड़ीवार कट्ठे ने, पूरा टॉपिक चल रहा है। ये खीरा सलाद ब्रेकफास्ट खाना वो नहीं गल चल रही।
खीरा सलाद भी लंच नाल ही खाना है। ये चाह लंच नाल नहीं पीनी। ये जो जो लंच च भोजन खाना पूरा कट्ठा भोजन की गल चल रही है, पूरी डिश की गल चल रही है, पूरा टॉपिक है। साध संगत जी इस तरह बाणी पढ़ांगे ना बड़ी समझ आएगी। समझ आने तो बाद अपने ते अप्लाई करने का चित करेगा, मैं ठीक होना है, समझ पल्ले पेगी। सो असी निज घर दी मत दे जे सीकर बनना है, उन्होंने पता है कि कहते हैं, उन्होंने सबाही सलाह जिन्नी त्या एक मन। सबाह का मतलब होंदा है सवेर, सवेर का मतलब होंदा है अमृत वेला, अमृत वेला का मतलब होंदा है भोर, भोर का मतलब होंदा है प्रभात, प्रभात का मतलब होंदा है सवेरा, सवेरा का मतलब होंदा है जदों जाग पए उन्होंने सवेर कहते हैं। अमृत वेला असी सवेरे सिर्फ 3 बजे तो सवेर के 6 बजे तक का नाम अमृत वेला रखा हुआ है। सानू कह रहे ने 24 घंटे 7 दिन सारी उम्र का हर पल अमृत वेला बना। सवेरे जागना चंगी गल है, पर जिंदगी नू अमृत रूपी वेला बना। अमृत वेला बनाएगा तो जमा तो मार नहीं खाएगा। सच सुनाए सी सच की बेला, सच की बाणी नानक आख है, सच सुनाए सी सच की बेला। सच की बेला कदों आती है? जिस बेला पे मेरे को जम अटैक करता है, जिस बेला मैं मर जाता हूँ। नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित बेला मर जाए जियो मेरा। जिस वेले मैं मर जाता उस वेले उन्होंने सच की बाणी सुनाओ ताकि मैं अमृत हो जावा, मैं मृत ना रवां, मैं ना मरा, मैं जीवन दड़ो मोयो। हाँ साध संगत जी इको श्लोक चल रहा है साडा टॉपिक। मेरी इंटेंशन, मेरी मंतव है कि असी किसी तरह एक जागंदे ना लहन, एक ना सुत्तियां दे उठाल तक मैनू उठा देन, मैनू जगा देन। इस करके तुहाडे चों मैनू नहीं पता मजबूरी किदी होएगी, दूर किदे वास्ते होएगा। इन्नी दूर जे विआह शादी होवे, टिवोली गार्डन 3 घंटे लगते हैं, उस पासे उधर इन्नी दूर 5-5 घंटे के विआह ते जाते हो ना, ट्रैफिक जैम इंदर, और उसे 6-6 घंटे अटेंड करके आते हो ना। हुण तुसीं सोचना आना है नहीं आना, दूर है नहीं है। सबाह दा भोर दा मतलब होंदा है गुण मैनू वापस चाहिए ने। मेरे गुण जामने खोए सी, उन्हां दे कारण मैं मर जांदा सी। मैनू अमृत वेला वाला समा चाहिए। सच सुनाए सी सच की बेला, उस बेला मैनू सच सुनाओ, मैनू सच पल्ले पवे। तो हुण असी इस श्लोक नू लैंदे आ। सबाही सलाह जिन्नी त्याया एक मन। प्रीतम नाल मिलन दा वेला सबाह दा वेला हुंदा है। प्रीतम नाल मिलन वेले जदों जीवन बन जाता है तां प्रीतम दा मिलाप जिहड़ा है उस वेले साडा सच नाल विआह हो जाता है। उस वेले सानू जम अटैक नहीं कर सकते। नानक बद्दा घर था जिथे मिरत ना जन्म जरा। महल प्राप्त हो गया, निज घर महल प्राप्त हो गया, हुण इत्थे जम अटैक नहीं कर सकता। मैं गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत, मैं महल प्राप्त कर लिया। इस अवस्था नू कहंदे ने सबाई साला जिन्नी त्याया एक मन। दिन चढ़ गया जी, रहन गई सी, मैं एनालिसिस कर लिया हाउ माई टाइम वॉज बींग वेस्टिड। मैं किस तरह समा जाया कर रहा सी, और जवाया करन दे कारण अवगुण मेरे ते अटैक करी जा रहे सन। जागण वाली मत मैनू चाहिदी है। जे इस तरह नहीं ना समझांगे, सीधे अर्थ करा उहदे मैं दाती साहब संधिया क्या चल रहा तिस नाल एक जागन दे नाल हैन। जेड़े जाग रहे सन वो ना नहीं लैंदे ने वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। लै फिर जागण का की फायदा है? एक जागन दे ना लहन दे असी अर्थ नैगेटिव कर दिते। क्यों भाई? एक जागन दे ना लहन का मतलब होंदा जेड़े जाग पे ना एक बारी वो फिर अवगुणी मत दे ख्याल नहीं लैंदे ने। एक जागन दे ना लहन, एक ना सुत्तिया दे उठा। जेड़े सुत्ते ने उन्होंने उठा देंगे। नानक गुणवंतिया गुण दे, पर जेड़े जाग पे ने ना वो फिर नहीं सोंदे ने। समा हो गया सही पूरे शाह वक्त ऊपर लड़ मुए। वक्त केड़ा?
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹਿਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੋਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆਂ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੱਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਊਂਘ ਆ ਗਈ, ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੋਤੇ ਰਾਹ, ਦੂਜੇ ਬੋਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆਂ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਡੁਐਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਤਰੀਏ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ। ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ। ਡੁੱਬਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਡੁੱਬਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਜਾऊँ ਕਿ ਇਧਰ ਜਾऊँ, ਇਧਰ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਧਰ ਹੀ ਜਾऊँ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਮੁਈ ਗਿਰਾ, ਬਹੁਤੇ ਪਏ ਅਸਗਾ ਗੋਤੇ ਖਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਮੁਹੀ ਗਿਰਾ, ਭੁੱਖ ਤਿੱਖਾ ਦੋਏ ਭੌਂਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਰੱਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਭੌਂਕਣਗੇ। ਖਾਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾ ਪੀ ਖਾਣੇ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ? ਮਾਇਆ ਨਾਗਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर ਸਮਝਾਂਗੇ। माया हुई नागनी जगत री लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाए। माया किसी चीज़ नूं नहीं कहते ने, मेरे मन की मत दे मंदे ख्यालों नूं कहते ने। वो पॉइजन दा मैं तृष्णालु भोजन खांदा हाँ। चौथे आई ऊँग, आ गई नींदर। चौथे आई ऊँग, अखी मीट पवार गया। कुमत आ गई, जम ने पकड़ लिया, पल पल मौत हो रही है। हुण क्यों होया? पी उठ रचियों वाद सह वरियां की पिड़ बद्दी। हुण मैनू डर लगता है, हाय कोविड नाल ना मर जावां, हाय उहदे कारण ना मर जावां, शरीरक तल ते ना मर जावां, क्योंकि मैं 100 साल जीना है। मनु की कहंदे ने, बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबण लगी जे 100 वरियां पी जीवना, अजी जी लो। जितने मर्जी तुम अपने आप को कोविड से बचा लो। ये जड़ा पल पल आ गए जमदल बिखम का ना दे वायरस आ रहे ने ना, 1000 साल तो आ रहे ने। जे 100 वरिया भी जीवना, पीतन होसी खे, तू मरिया होया है। अगला श्लोक कंत रंगावला दा घर जाके पढ़ना, नहीं तो अगला श्लोक समा क्योंकि मेरा हो गया है, इस करके असी अगले हफ्ते जिथे प्रोग्राम होएगा उत्थे लड़ीवार करांगे। इंटेंशन इक्को ही है, एक जागन दे ना लहन, एक ना सुत्तियां दे उठाल तक असी पूरा टॉपिक समझना है, बड़े ध्यान नाल बड़े आराम नाल समझना है। तुसी इत्थे गुरुद्वारे दे विच पुरब मना रहे हो बाबा दीप सिंह जी दा, ते ये सारियां साडियां जीवन दियां अवस्थावां विच किस तरह असी ऐसी स्टेज ते पहुँचते हैं, साडा जीवन बनता है। मन की मत वालों तो असी मरना नहीं चाहते, तो उहदे कारण सानू तन की पकड़ रहिंदी है।
फ्राइडे फैबररी 18 तरीक 7 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਕੇਤ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਰਤ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਚੌਥਾ, ਆਈ ਊਂਘ ਅੱਖੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀ ਭਉ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। 100 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਪਿਛਲ फरीद जी कह रहे ने तू अपनी सारी जिंदगी रूपी पिछली रात विच नहीं जागया ना, तू जींदा नहीं है, तू मोया होया है, तू मोए दी न्याई है। यू आर जस्ट लाइक डेड बॉडी। जे ते रब विसारिया जो जे तू रब्बी नियम जेड़ा वाचे धर्म हदूर दा धर्म राज दा जेड़ा सच दा नियम चल रहा, जे तू इनू इग्नोर करदा है, जे तैं रब विसारिया दा मतलब यह है। रब विसारिया ते रब नू याद करना की हुंदा? रब 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 नहीं, ये नहीं होंदा। जे तै रब विसारे दा मतलब है जे तू कुदरत दे खरे सच्चे नियम तेरे ते वापर ने, एक ओ अंकार तेरे एक एक अंग ते सच दी कार चल रही है, तू समझ नहीं रहा, तू नेगेटिव थॉट्स ले रहा है, तू फॉरेन आइटम मतलब मंदे ख्याल मतलब जम मत दे औगणी वायरस नू अंदर पा रहा है। इहदे नाल तू पल पल मरदा है, तेरी मत मर जाती है, तेनू कुमत आ जाती है, तेनू कुबुद्धि आ जाती है, तेनू अक्ल नहीं आ रही, तू जाग नहीं रहा, समझ नहीं रहा। देख जे तै रब विसारिया, इफ यू इग्नोर द ट्रुथ बट ट्रुथ प्रिवेल्स। सच पुराना ना थी है, सच विच सच्चे कूड़ ना गड्ढई, मन वेखो को निर्जास। देख तू सच नू इग्नोर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जे ते रब विसारिया इनू कहंदे ने, तां रब ना विसरियो है। लॉ इज एप्लीकेबल। कुदरत दा रजा दा नियम तेरे अंदर लिखिया है, नानक लिखिया नाल हुक्म रजाई चलना। इनू जे तू इग्नोर करदा है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल हुक्म रजाई, सच दा नियम हुक्म इनू समझ। ये जे तू इग्नोर करदा है तो तू पल पल मर रहा है।
कोविड कोलों बच, जिवें मर्जी बच, लेकिन तू 100 साल भी जी लै, भी तन सिखे वाला तेरा जीवन है। जे तैं रब विसारिया तां रब ना विसरे होए। लॉ नू इस तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। लॉ नू तू नहीं तोड़ सकता। लॉ केड़ा? डिवाइन, कुदरत दा खरा सच्चा नियम। प्रबंधक सज्जना दा, इत्थों दे भाई साहब जी दा और तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इतना प्यार किया, इतने प्यार नाल, इतनी नम्रता नाल, इतनी ਇਕਾਗਰਤਾ नाल, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस नाल ਸਾਨੂੰ विचार ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। मैं बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। बोलद्या होया बहुत सारिया फालतू दियाँ गल्लां मैं कर गया तो मैनूं खिमा करना। मेरी कोई इंटेंशन है असी बाणी समझनी है। 10 मिनट मैं वाधू लै गया, भावें शुरू 10 मिनट लेट होया सी, पर फिर भी मैं प्रबंधक सज्जना की गल नूं मुख रखदे होया माफ़ी चाहता। सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने प्यार नाल, इतनी सत्कार नाल और इतनी नम्रता नाल सानू सांझ करन दा प्रबंधक सज्जन जदों भी समा देणगे, असी आप जी की सेवा जरूर हाज़र होवांगे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।